اور کچھ سیاسی خبریں شامل کریں گے۔ مخالفین اور پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کو غدار کہنے کا بیانیہ بشرا بی بی نے بنایا۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی مبینہ آڈیو لیک ہو گئی۔ بشرا بی بی نے لیک آڈیو میں عمران خان کی فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا ارسلان خالد کو ہدایات جاری کی۔ مخالفین کے خلاف بیانیہ بنانے اور انہیں غدار ثابت کرنے کی مہم چلانے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ جی آپ کا کل بالکل جو میں نے خان صاحب نے آپ کو کہا تھا نا کہ غداری کا وہ جو آپ نے ہیش ٹیگ کر کے کرنا ہے، اتنے لوگوں کا فون آیا ہوا تھا کہ آپ کا سوشل میڈیا بہت ایکٹیو تھا اور ایک ہفتے سے بالکل ایکٹیو نہیں ہے، تو کیوں ہے بیٹا؟ آج کل تو آپ لوگوں کو بہت ایکٹیو ہونا ہے۔ اچھا جی، ایکچولی کل نا ٹھیک ہے، اب میری بات جی یہ جیسے علیم خان ہے، ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت آ کے میرے خان صاحب کے حوالے سے بولیں گے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے آگے اس سے بھی زیادہ گند ڈالنا ہے، وہ جو میری ساتھ وہ بچی ہے فرا، اس کے اتنا گند ڈالنا ہے، لوگوں کی گواہی بھی دیں گے، آپ نے اس کا کوئی ایشو نہیں بنانا، ان سب کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ۔ یہ پری پلانڈ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو علیم خان ہے، یہ جو سب بولیں گے نا، یہ ساری ایک پلاننگ کے تحت ہیں، تو آپ نے اس کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ۔ اپنے سوشل میڈیا میں لیٹر کو اٹھانا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ لیٹر صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ غداری کی وجہ سے یہ سب اکٹھے ہو گئے اور یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ غداروں کے ساتھ مل گئے، اور غدار باہر کی قوتیں بھی ہیں اور سب، وہ سارا آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، اب یہ پتہ لگ گیا، آج آپ نے یہ روس کا اٹھانا ہے کہ دیکھو ان کو پتا ہے کہ ملک میں خان کے ساتھ غداری ہو رہی ہے اور ملک کے ساتھ ہو رہی ہے، اور یہ ان کا بیان دیکھیں، اس کو آپ اپنے لفظوں میں اس کو آپ نے سونے نہیں دینا، اس کو ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے، اس کو ٹرینڈ بنا دینا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ملک اور خان کے ساتھ غداری ہو گئی ہے۔ دیکھیں آج ان کے بیان آیا ہے جی۔ اچھا اس طرح دوسرا میں نے آپ کو کہنا تھا، مجھے اور جو وہ فرا ہے نا، اس کے بارے میں بہت انہوں نے گند اڑانا ہے، اس پہ بھی آپ اس کو بھی آپ نے لنک کر دینا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ غدار کون کر رہا ہے۔ بالکل جی، اس کو اسی طرح کریں گے نا کہ یہ تو سارا اس وجہ سے ہی کر رہے ہیں کیونکہ اپنے خود غدار ہیں اور اس وجہ سے اور اس طرح کے الزامات اس کو پکڑنا چاہ رہے تھے، اس کو یہ پکڑنا چاہ رہے تھے کہ یہ چکر کیا ہے کہ خان صاحب جو ہر چیز میں سے نکل رہے ہیں اور ان کو چیزیں پتہ کیسے ہوتی ہیں۔ اچھا ہر یہ سمجھ آپ کو، لیکن یہ صرف آپ کو بتا رہی ہوں، اس ایشو کو آپ نے نہیں کسی کو کرنا، لیکن وہ اس کے پیچھے اس لیے ہیں۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ لیک آڈیو آپ نے سنی، جبکہ عمران خان اور ان کے ترجمان بشرا بی بی کو غیر سیاسی قرار دے کر ان کا خوب دفاع کرتے رہے ہیں، ہر فورم پر کہتے رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ عمران خان اور ان کے ترجمانوں کے ماضی میں جاری کیے گئے بیانات بھی سن لیجئے۔ میں نے اس طرح لوگوں کو گرتے نہیں دیکھا جس طرح انہوں نے بشرا بیگم کو اٹیک کیا، جو وہ نہ وہ پولیٹکس میں ہے، نہ وہ کوئی پبلک فگر ہے، نہ وہ کوئی آتی ہے سامنے۔ ہماری جو خاتون اول ہیں ان کا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے اور نہ وہ سیاسی لیڈر ہیں، وہ ایک ہاؤس وائف ہیں اور ان کو بھی گھسیٹا گیا۔ یہ جو فرسٹ لیڈی ہیں بشرا بی بی، وہ ایک گھریلو خاتون ہیں، اور جس طرح سب کی مائیں بہنیں جو ہیں وہ سانجی ہوتی ہیں، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اس نظر سے دیکھنا چاہیے۔ ان کا کسی قسم کا کوئی سیاسی رول جو ہے وہ نہیں ہے، نہ ہی ان کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے۔ بار بار یہ لوگ خاتون اول کے اوپر حملہ آور ہوئے، وہ کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتی، وہ کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتی، وہ کسی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی کے اوپر کوئی بیان بازی، کوئی رد عمل نہیں دیتی۔ آپ ان کے اعتقاد کو، ان کی اس بات کو جادو، ٹونا، منتر، اس طرح کے الفاظ دے کے آپ کو توہین کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہٹ مجھے کرنا چاہتے ہیں، میرے اوپر ملتا کچھ نہیں ہے، چلے جاتے ہیں۔ اب بشرا بیگم کو کیا ملنا، وہ تو گھریلو عورت ہے، ان کی تو کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، لہٰذا ان کی دوست کو پکڑ لی۔ پنکی پیرنی کا بیٹا ابراہیم مانی کا 4 سال میں ارب پتی ہو گیا۔ ہر منصوبے میں کمیشن پنکی پیرنی کے بیٹے کو جاتا تھا۔ عمران پنجاب کا دشمن، صوبے پر فرح گوگی کو مسلط کیا گیا۔ فتنہ خان کو ہیروں کی رشوت لینا یاد تھی، بجلی گھر بنانا بھول گیا۔ مریم نواز کا لاہور میں پہلے انتخابی جلسے سے دھواں دار خطاب، کہتی ہے نالائق خان کو ایک ہی دکھ ہے، پاکستان سری لنکا کیوں نہیں بنا؟ اس نے پاکستان کو دیوالیہ کرنے کا پورا پروگرام بنایا ہوا تھا۔
पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के लिए काफ़ी हलचल है। मुल्तान से सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 217 में भी खूब गहमा गहमी है। मुल्तान से इमरान अरशद। मुल्तान के ज़िमनी हलके PP 217 में सियासी सरगर्मियां अरूज पर। इलेक्शन 2018 में आजाद उम्मीदवार सलमान नईम ने साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को सूबाई सीट पर शिकस्त देकर सबको हैरान कर दिया था। सलमान नईम 35,200 वोट लेकर पहले, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 31,716 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए और नून लीग के उम्मीदवार ने 21,618, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने सिर्फ 3,963 वोट ही हासिल किए थे। ज़िमनी इंतखाब से कबल वोटर और सपोर्टर्स खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। हमारा वोट भाई शेर का है, शेर के साथ है। तहरीक इंसाफ को इंशाल्लाह इसलिए सपोर्ट करेंगे कि इन्होंने इस वक्त यानी कि यूसी में बड़ा काम कराया है। पहले भी सलमान जीतता था, अब भी सलमान जीतेगा। 2018 में आजाद उम्मीदवार से शिकस्त खाने के बाद साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ज़िमनी इलेक्शन में अपने बेटे ज़ैन कुरैशी को मैदान में उतार दिया, जबकि मुनहरफ होने वाले रुकने सूबाई असम्बली सलमान नईम नून लीग के उम्मीदवार हैं और कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। मैं सलमान नईम के लिए बहुत ज्यादा दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे। ज़िमनी इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ, नून लीग, दीगर सियासी जमातें दिन रात कॉर्नर्स मीटिंग में मसरूफ दिखाई दे रही हैं। हल्का PP 217 की जीत हार का फैसला जनूबी पंजाब की सियासी हवाओं को बदलने में अहम किरदार अदा कर सकता है। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ इमरान अरशद, नियो न्यूज़। मौसम की बात करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का जोर टूट गया। दर्जा हरारत में नुमायां कमी आ गई। हब्स में कमी से अवाम ने सुख का सांस लिया। आज इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 36 डिग्री रहा, जो 2 रोज़ पहले 42 डिग्री पर था। पंजाब भर में मौसम खुशगवार है। आसमान पर हल्के बादल छाए हुए हैं। गर्मी की शिद्दत में नुमायां कमी आई है। लाहौर का पारा 36 डिग्री पर है, जो कि इस हफ्ते 45 डिग्री तक पहुँच चुका था। कराची समेत सिंध भर में भी गर्मी कम हो चुकी है और शहर कायद का दर्जा हरारत 36 डिग्री पर है। और क्या कराची वालों का इंतजार खत्म होगा? आसमान पर छाए बादल आज बरस जाएंगे। समंदरी हवाएं शहर में दाखिल हो गई हैं। इस बारे में बता रही हैं मानिया शकील। कराची वाले दिल थामे थामे बैठे हैं कि बादल कब बरसेंगे, लेकिन फिलहाल बादल नहीं बरसे क्योंकि महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बादल आज शाम से बरसना शुरू करेंगे। लेकिन समंदरी हवाएं कराची में चलने लगी हैं तो हवाओं की रफ्तार थोड़ी बढ़ गई। तकरीबन 12 नॉटिकल माइल तक हवा की रफ्तार है इस वक्त। और क्योंकि हम समंदर किनारे मौजूद हैं तो जो मौसम है वो खासा इंजॉय करते लोग भी नजर आ रहे हैं। कहीं कश्ती चल रही है, लोग मछली का शिकार भी कर रहे हैं। जबकि PTMA की जानिब से ये भी कहा गया है कि गहरे समंदर में लॉन्चेस ना जाएं, लेकिन यहाँ पे कुछ कश्तियाँ चलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन गहरे समंदर में नहीं जा रही क्योंकि पाबंदी है। बारिश कभी भी बरस सकती है क्योंकि मानसून का स्पेल आज शाम से शुरू होगा और 5 तारीख तक कराची में यूं ही बरसता रहेगा। तो कराची में जो मौसम है वो खासा दिलफरेब है। इस वक्त भी बादलों की आंख मचोली जारी है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और दर्जे रात कभी कम कभी ज्यादा महसूस हो रहा है। लेकिन क्योंकि अब हवा में नमी भी तब्दील होने लगी है और हवाएं तेज चलने लगी है तो मौसम जो है दिलफरेब होता जा रहा है। साथ साथ कराची वाले इंतजार में कि बादल कब बरसना शुरू करेंगे। 2 दिन की बारिश का स्पेल, उसके बाद 1 दिन का इंतजार और फिर नए स्पेल की एंट्री। तो ये कराची वालों के लिए खासा एक अच्छा मौका भी है और एहतियात का वक्त भी है कि मानसून एंजॉय करें, लेकिन एहतियात के साथ। बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से हुसूल इल्म के लिए लाहौर आने वाली सदफ बशीर मेहनत और लगन का इस्तियारा बन चुकी है। सदफ इन तमाम बच्चों और बच्चियों के लिए मिसाल हैं जो वतन अजीज़ के दूर दराज इलाकों में रहने के बावजूद आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं। आइए ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरा नाम सदफ बशीर है। मानसा तुर्बत बलूचिस्तान से बिलोंग करी। रिसेंटली मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी होती ग्रेजुएशन कंप्लीट को फाइन आर्ट्स से तो का एदा के अंचु आया गो फाइन आर्ट्स से एडमिशन जूरग ये सजे एक बलाएं वती तो का बलाएं प्रोसेस है पियो तो का आहा ग पद अंचु के मां सोचता बुता के इंचो दूरी सफर में तय कनी काई इसे पोछता सजना ची मस्तरी बैक मनी जंदे फैमिली बुता तो फैमिली सपोर्ट सक बात ज़रूरी भी एक जने की भी चाहे बच्चा की बीते फैमिली के सपोर्ट तो रसी को एक तो वास्ता एक मोटिवेशन है भी दिमे आएगे वास्ता कि आओ मनी फैमिली में नहीं तो सपोर्ट है मन दिमा चीज़ें कुछ कनी और भले दयक
खासिंग पे बुत्ता के देख हमें जो टीचर्स बुत्ता के मनी बना शावाने ता ऐसा सखबाज मनी सपोर्ट को था हर चावाले अच्छा है जब मैं 5th सेमेस्टर रात का बुत्ता मनी के मेजर सिलेक्शन टाइम बुत्ता मेजर सिलेक्शन टाइम मना सखबाज प्रॉब्लम इश्यूज बुत्ता आ वजह से कि मन हर चीज़ से कग लुटता बुत्ता इधर जो मर्दों माँ या कि तो ज़ुबान है मस्तरी चीज़ ज़ुबान में वती बलूची लैंग्वेज हैं और माँ उर्दू सा कम गप करना उर्दू गप सा कम गप करने के वजह से आज जो एक्सेंट हैं आज से डरने थे मैं जो चाकर आज़म चाकर रिंद और गुहराम लाशरी के 30 साल जंग करना शानी पूरे ओवरऑल माँ होती तीसरे तो कई स्टोरी और तक चूनिया हस्ते खाना जंगी सिविल वॉर तो गोश्त करें तो रिवेंज वॉर गोश्त करने शानी तो का 30 साल यक जंग सरजम कोत और 30 साल तो का आवती जंदे सरजमीन चिगस्ता बुता और इवरी जंग तना आ दौरा ची बगैर ए दौर तक आ अगर सेंचुरी बुता 5 दौ में या 5 दौ में अन्नु अस्ते मा 21वीं सदी तो का मा अंगा भी अच्छी जंगा ने तो का इन्वॉल्व और अंगा तक में तो का अमा जात नियत का के इवरी जंगा सेवाए अस्ते कुछ तो कुशारिया दगे एच बी नरसी में जंदे ब्रात थी अलास पुआ बई जंगा चे मनी जिंदा जो अस्ते आगा मा बुगुशी एक रिक्वेस्ट कनक लूटे आयशिन के मैं बलूचिस्तान तुका चाहे तुर्बत गवादर पंजगूर या दगी भी इलाका में वहाँ उधर टैलेंटेड स्टूडेंट सक बाजा जो कहीं इवड़ी अपॉर्चुनिटी न रसीते और हमें वजह छी आ पोस्ट कब तक या कि फैमिली सपोर्ट न रसीते फैमिली में सपोर्ट न रस के वजह छी आवती ई टैलेंट आई शो का पुस्तक कना और दगी फील्ड तो का रवंते पोस्ट कपनते फैमिली अच्छी रिक्वेस्ट है प्लीज़ चौका ए फील्ड आएगे वास्ता कमो बस दिल बड्डी भी तियाँ और आईनी सपोर्ट भी बनते ताकि या गिश्तर में हस्ते कौमे तो कई टैलेंटेड चीज़ दर भी आयनते वेलकम बैक। अभी हम मिलवाएंगे आपको कराची के सिम्बा से जिसके हैं लंबे लंबे कान, चाल में है खूबसूरत अदाएं और खूबसूरती का बैनुल अक़वामी अवार्ड हासिल करने वाले सिम्बा से मज़ीद हम जान लेते हैं मोना सिद्दीकी से। मासूम शरारतें, चाल में नटखट अदाएं, ये है सिम्बा पाकिस्तानी। सिम्बा की खास बात है इसके लंबे लंबे कान। ये लेडी ब्रीड है और ये पाकिस्तान की ब्रीड है। पहले बहुत ज्यादा होती थी, अब एंडेंजर्ड स्पीशीज में इसको आप शुमार कर सकते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग के बायस अब इसकी नस्ल खत्म हो रही है। इसकी नस्ल इस वजह से खत्म हो रही है, एक तो हमारे जो बेसिकली जो फार्मर्स हैं वो तकरीबन इलिटरेट हैं। इलिटरेसी की वजह से उनको इल्म नहीं होता कि यार हम लोग इसको क्रॉस ब्रीडिंग ना कराएं। दौड़ता भागता सिम्बा 3 वक्त दूध पीता, नाज नखरों में पलने वाला, नर्म बिस्तर पर सोता है। इसके मालिक का दावा है कि सिम्बा दुनिया में सबसे लंबे कानों वाला मेमना है। ये खूबसूरती का इंटरनेशनल अवार्ड भी जीत चुका है। सिम्बा पाकिस्तानी बच्चों और बड़ों सबका दोस्त है। अल्लाह की अता करदा इंफरादियत, सिम्बा के लंबे लंबे कान जो इसको सिर्फ मुल्की सतह पर नहीं बल्कि दुनिया भर में मुनफरिद बना रहे हैं। कैमरामैन जमशेद अली के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़, कराची।